Good morning, students. So far we have discussed about solvency ratios, short-term solvency ratios, right? Short-term solvency ratios. तो short-term solvency ratios के अंदर क्या क्या आता है? एक current ratio और एक quick ratio. These formulas I had already told you, right, in my previous media file. Today I am going to tell you the formulas for long-term solvency ratios. Long-term solvency ratios. So first is debt equity ratio. How you will calculate debt equity ratio? Debt upon equity. Debt upon equity, right? How you will calculate debt? Debt is the sum of long-term borrowings plus long-term provisions. ये सारी टर्म्स आपने कंपनीज बैलेंस शीट में पढ़ रखी हैं. अपॉन इक्विटी. इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड. Equity is shareholders fund. Next formula is formula for proprietary ratio. Formula is shareholders fund upon total assets. और shareholders fund क्या होता है? Equity. Equity upon total assets we can say, or we can say shareholders fund upon total assets. Then third formula is total asset to debt ratio. Total asset upon debt. Is it clear? One formula you can also write working capital. Formula for working capital, right? Formula for working capital, that is current assets minus current liabilities, right? So is it clear? Ratios are divided into three parts: solvency ratios, turnover ratios and profitability ratios. Solvency ratios के दो पार्ट हैं, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के पार्ट्स मैंने अपनी प्रीवियस मीडिया फाइल में आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था, जिसमें आता है करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर तीन रेशियोज आती हैं: डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो. इज इट क्लियर? So let us take an example and we will try to find out how the questions based on these formulas are to be answered. How we can calculate these ratios. Let us take with the help of some examples. We will start with short term solvency ratio, जिसके formula previous media file में हमने लिखवाए थे. उसके ऊपर based हमने कोई example नहीं किया है, कोई question नहीं किया है. So today we are going to start some of the examples or questions based on these formulas, that is current ratio, current assets upon current liability, then quick ratio, quick asset upon current liabilities. So let us take an example. Suppose in the question current ratio is given 2.5. Current ratio is given 2.5. Working capital is given 1,50,000. Current assets और current liabilities we have to find out. हमें निकालनी है current assets और current liabilities. अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? You just closely look at these things, right? Current ratio, as we know, current ratio is current assets upon current liabilities. Is it clear? The answer of this is already given, 2.5. Current ratio 2.5. It means 2.5 is to 1. We can write this way also. It means current assets upon current liabilities is 2.5 upon 1. इसको short form में we can write CA and CL. We will cross multiply this. We will come to know that current assets is equals to 2.5 times of current liability. Is it clear? Current asset is 2.5 times of current liability. यहाँ तक clear है? Now working capital is given 1,50,000. और मैंने working capital का formula आपको अभी बताया, current assets upon current liabilities minus current liabilities. So working capital is equals to current assets minus current liabilities. Working capital is current assets minus current liabilities. Working capital हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000. That is already given in the question, 1,50,000.
2.5 टाइम्स ऑफ CL, 2.5 टाइम्स ऑफ CL, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, माइनस करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। देन 1,50,000 इज इक्वल टू 1.5 CL, 2.5 CL में से 1 CL माइनस हो गया तो 1.5 CL, देयरफॉर CL इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5 ऊपर आ गया, that will be 1 lakh. So my current liabilities are 1 lakh, correct. और current assets कैसे कैलकुलेट होंगी? current assets जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ current liability है, therefore current assets is equals to 2.5 times of 1 lakh, it will be 2,50,000. Is it clear? So this is the answer. Current assets is 2.50,000, 2,50,000. Current liabilities is 1 lakh. So is it clear how to solve the question? इसकी वैल्यू उठा के कैसे इस इक्वेशन में रखना है और सॉल्व करना है. This is how we find out current ratio. This example is clear. Let us take one more example based on this short term solvency ratio. इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट. Right, let us take one more example. Suppose in a question current liabilities are given 6 lakh, current ratio is given 3:1, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो एक ही बात है. मैंने आपको जब कल मीडिया फाइल में फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने आपको इसके ऑल्टरनेट नेम्स बताए थे. क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशो. वो हमें दे रखा है 1:1. क्या गिवन हमें? 1:1. इज इट क्लियर? इन्वेंट्री कह रहा है फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री पता लगानी कैसे निकलेगी. क्वेश्चन समझ आया आपको? करंट लायबिलिटी 6 लाख, करंट रेशो 3:1 एंड लिक्विड रेशो 1:1. इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? हाउ विल यू फाइंड आउट इन्वेंट्री? देखो कैसे करते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को. करंट रेशो थ्री अपॉन 1. 3:1 means 3/1. It means current asset upon current liability is 3/1. It means 3 times of current liability is equals to current assets. हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई. ये इधर चला गया, इधर चला गया. 3 times of current liability current asset के इक्वल है. Is it clear? Let us take second ratio, quick ratio. क्विक रेशो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1:1, 1/1. इसका मतलब क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज 1/1. मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना क्विक रेशो का. फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. इट इम्प्लाइज दैट क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज. क्विक असेट्स किसकी इक्वल है? करंट लायबिलिटीज़ की. इतनी बात क्लियर होती है आपको. केवल फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, राइट. क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी 6 लाख इज ऑलरेडी मेंशनड. 6 लाख इज मेंशनड. वी विल पुट 6 लाख इन दीज टू थिंग्स. इसका मतलब क्या हुआ? 3 into 6 lakh equals to current asset and quick asset is equals to 6 lakh. करेक्ट. ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू में दे रखी है 6 लाख और करंट लायबिलिटी क्विक असेट्स के इक्वल है. इसका मतलब क्विक असेट इज ऑल्सो 6 लाख. 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, 3 टाइम्स ऑफ 6 लाख इज इक्वल्स टू करंट असेट्स. इसका मतलब करंट असेट्स हो गई 18 लाख. ये होगी कितनी? 18 लाख. ठीक है. तो हमारे पास क्विक असेट की वैल्यू आ गई, हमारे पास करंट असेट की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट इन्वेंट्री. मैंने अपनी प्रीवियस मीडिया फाइल में एक फॉर्मूला लिखवाया था. क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस. इज इट क्लियर? दिस फॉर्मूला आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. क्विक असेट इज करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. तो हम क्विक असेट्स की जगह क्या लिख सकते हैं अभी?
क्विक एसेट्स की जगह लिख सकते हैं 6 लाख। करंट एसेट्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 18 लाख। इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस को वी विल एज्यूम इट एज जीरो। हम प्रीपेड एक्सपेंस को जीरो ले सकते हैं, इन्वेंट्री को जीरो नहीं लेते, प्रीपेड एक्सपेंसेस को वी कैन टेक इट एज जीरो। तो इन्वेंट्री कितनी हुई, इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, ये इधर चलेगी, ये इधर आ गया, 18 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 12 लाख। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कैसे फाइंड आउट किया ये? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। एक एग्जांपल और ले लें, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इन अ क्वेश्चन current ratio is given 4.5 upon 1 is to 1. Quick ratio is given 3 upon 1. Inventory is also given 36,000. कह रहा find out current assets and current liabilities. Find out current assets and current liabilities. See how to solve this question. Same तरीका, prepare two equation. Current ratio is equals to 4.5 upon 1 is equals to CA upon CL is equals to 4.5 CL is equals to CA. This cross multiply. Is it clear? Second, quick ratio (3 upon 1) quick asset upon current liability 3 times of CL equals to quick asset. Is it clear? Now what is given in the question? Inventory. Inventory का यूज़ कहाँ होता है? Quick assets में. So we know that quick assets is equals to current assets minus inventory minus prepaid expenses minus prepaid एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये करंट एसेट की जगह 4.5 CL, इन्वेंट्री की जगह 36,000 गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस 0 और क्विक एसेट की जगह 3 CL। क्विक एसेट की जगह 3 टाइम्स ऑफ CL, क्विक एसेट की जगह 3 CL, CA की जगह 4.5 CL। CL की वैल्यू आ जाएगी इससे 1.5 CL इज इक्वल्स टू 36,000। भाई इधर चला गया, इधर चला गया, एंड CL इज इक्वल्स टू 36,000 अपॉन 1.5। CL इज इक्वल्स टू 3,60,000 अपॉन 1.5। इज इट क्लियर? तो CL कितना हो गया? CL हो गया आपका 24,000। ये पूछा था क्वेश्चन में, CL कितना होगा? CL हो गया 24,000। तो CA कितना है? CA जो है वो 4.5 टाइम्स ऑफ CL है। CA इज़ 4.5 टाइम्स ऑफ CL। तो CA हो गया 4.5 टाइम्स ऑफ 24,000। तो वो कितना आ गया आपका? 1,08,000। करेक्ट। भाई इतनी बात समझ आती है आपके? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 4th चैप्टर ऑफ 3rd बुक अकाउंटिंग रेशोज़। इसके फार्मूलाज की PDF भी भेजी हुई है आपको। मैं 1 by 1 हर फार्मूला के ऊपर बेस्ड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा। इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट फ्रॉम योर बुक। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लें। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, दैट आई विल टेल लेटर ऑन। अभी के लिए इतना ही सफिशेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन समझ आए? आज हमने किस पे किए? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ के क्वेश्चंस सॉल्व किए।
आज के लिए इतना ही करना है। थैंक यू।